आज हैं हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, जहां पर कि ओपन माइक एंड चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी द्वारा पोइट्री इवनिंग की जा रही है, जिसमें कि स्टार पोइट वरुण अनंत एंड 12 एंड 12 टैलेंटेड पोइट्स लाइक एमी, सुखदीप एंड परिधि परफॉर्म करेंगे। थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं कार्यक्रम। हेलो 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 पोइट्री इवनिंग। हेलो हेलो। हमारे साथ हैं स्टार पोइट वरुण आनंद जी, जो कि आज इस कार्यक्रम में परफॉर्म भी करेंगे। आइए उनसे बात करें कि कैसे उनका रुझान पोइट्री की तरफ हुआ। सर, पोइट्री की तरफ रुझान जो मेरा कह लीजिए कि जगजीत सिंह साहब की वजह से ही हुआ था। गज़लों का मुझे बहुत शौक़ रहा है, जाने अनजाने में उन्हें बहुत सुना है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये सिंफ क्या है, ये टाइप ऑफ राइटिंग क्या है। तो बाद में पता लगा कि ये गज़ल है, ये गीत भी नहीं है, शायरी है और शायरों के द्वारा लिखी हुई रचनाएं हैं जिन्हें जगजीत साहब अपनी मधुर आवाज़ में गा रहे हैं। तो वो सुनते सुनते खुद भी एक, जब आपके मन में होती है ये बातें कि आप भी लिख सकते हैं, तो लिखने की कोशिश की। और पहले तो खैर क्या ही टूटे फूटे मिसरे होते थे, लेकिन धीरे धीरे समझ लगने लगी कि कैसे लिखा जाता है, कैसे कहा जाता है। तो कोशिश अब भी जारी है। नहीं, आपका जो एक गीत है जो बहुत पॉपुलर है जी, वायरल भी हुआ है जी, उसकी वजह से रिकॉग्निशन तो है ही है आपको। जी 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 जी, नज़्म है वो। नज़्म है, दो बोल सुनाना चल। हाँ, वो है कि झीले क्या हैं उसकी आँखें, उम्दा क्या है उसका चेहरा, खुशबू क्या है उसकी सांसें। तो इसी तरह से है वो नज़्म। मैं अभी काफ़ी लंबी नज़्म है तो आखिर में उसमें यही है कि क्या करते हो उससे मोहब्बत, इसके अलावा उससे मोहब्बत, मतलब पेशा से मोहब्बत। आगे बॉलीवुड में क्या विचार है आपका? बॉलीवुड के लिए मैं अभी कुछ कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि फिल्मी थोड़ा सा होना चाहता हूँ, स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ अभी। तो देखते हैं क्या होता है। नहीं, आपका बहुत वही विश कि आप अच्छी तरह से कामयाब हों। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। Poets. They will perform in English, Hindi, Urdu and Punjabi. To start off the evening, we have with us our chief guest, Dr. Sumita Mishra, Additional Chief Secretary to the Government of Haryana and Chairperson, Chandigarh Literary Society. So the concept of this evening was her idea, so we must thank her. And ma'am, a big welcome to you. I request Amy to please welcome ma'am. Thank you, Amy. Thank you, ma'am. Shri Jang Bahadur Goyal, an eminent Punjabi writer and translator, Mr. Alok Nigam, former IS officer. Now, your hosts for the evening are Yuvika Garewal and Shikhar Goyal. Yuvika is an educator and a published author. She's published 2 books. She teaches English to young learners. Shikhar is an entrepreneur by day and writer by night. His debut novel is set to release in 2025. A huge welcome to poets, friends and family. Let's listen to some poetry. Over to you guys. One more time, thank you Sonia for welcoming everyone. Warm greetings on this evening. Well, we thought that weather would be a deterrent, but it is really delightful and joyous to see you all here. It is wonderful to have you all here this evening. Well, ladies and gentlemen, बरसात का मौसम है, शायराना है. So we would like to start with something poetic. I'm not a connoisseur, but still I'll try to. I think it will be fitting to start by these words. कलम की नोक से निकली हर बात है, शायरों की महफिल में बस लफ्जों की बरसात है। आओ मिलकर इस मौसम का आगाज करें, कुछ सुने, कुछ कहें, कुछ मीठी सी आवाज करें। Well, this evening we have a blend of languages, themes, emotions, words, poets from diverse backgrounds and cultures.
and we have really looked forward to this evening. Our poets are going to bare their souls to you, and you all look perfectly ready to receive it. You all know that poetry is an art. It thrives on interaction. So while you're sitting here, cheer, congratulate, give, receive, connect with the words, with the thoughts, and with each other. You can be loud, you can be soft, interact and connect. Well, that's the theme and that's the call for this evening. And if I may also go ahead to mention that if painting comes from blankness and music comes from silence, then poetry comes from space between thoughts. Let us all this evening settle in that space and listen and watch as this evening unwraps. तो मैं आई हूँ, लेकिन आज मैं आपको अपनी किसी भी लिखी हुई कविता से भी ज़्यादा खूबसूरत एक नज़्म सुनाने के लिए आई हूँ। तो आप कहेंगे इरशाद, तो मैं शुरू करेंगी। जी, इसको अरबी में महमूद दारविश ने लिखा, जो एक पैलेस्टीनियन पोइट है। फिर इसका तर्जुमा अंग्रेज़ी में फीली जोड़ा ने किया, और उसके बाद आज सुबह मैंने इसका तर्जुमा हिंदुस्तानी में किया। तो लेटर टू अ यंग पोइट बाय महमूद दारविश। हमारे खाकों पर यकीन ना करो, उन्हें भूल जाओ। हमारे खाकों पर यकीन ना करो, उन्हें भूल जाओ, और अपने अल्फाज से शुरुआत करो। अपने अल्फाज से शुरुआत करो, जैसे कि तुम पहले शायर हो या फिर आखिरी। जैसे कि तुम पहले शायर हो या फिर आखिरी। अगर तुम हमारा कलाम पढ़ते हो तो हमारे गुरूर को मत बढ़ाना आगे। अगर तुम हमारा कलाम पढ़ते हो तो हमारे गुरूर को मत बढ़ाना आगे, बल्कि दर्द की किताब में हमारी खताओं को कम कर देना। हमारे दर्द की किताब में हमारी खताओं को कम कर देना। अगर तुम किसी गुलाब पर बहुत देर तक गौर करोगे तो कोई भी तूफान कभी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। तुम मेरी तरह हो, लेकिन मेरी गहराई साफ है। This poet is writing at the zenith of his career. तुम मेरी तरह हो, लेकिन मेरी गहराई साफ है, और तुम्हारे पास ऐसी राहें हैं जिनके राज अभी तुम पर जाहिर नहीं हुए हो। तुम जवानी के खत्म होने को सलाहियत की पुख्तगी या हिकमत कह सकते हो। ये हिकमत है बेशक, एक ठंडे गैर गज़लियती अंदाज की हिकमत। जब हम बहुत सारे टेक्निक्स और रूल्स फॉलो करने लग जाते हैं, गज़लें लिखने लग जाते हैं, उसके बाद एक ऐसा दौर आता है कि उन सब कायदों से हटकर हम खुली नज़में लिखने लग जाते हैं। तो आई थिंक ये कह रहे हैं कि तुम जवानी के ख़त्म होने को सलाहियत की पुख्तगी या हिकमत कह सकते हो। बेशक एक ठंडे गैर गज़लियत अंदाज की हिकमत। हाथ में 1000 परिंदे, हाथ में 1000 परिंदे उस एक परिंदे के बराबर नहीं जो दरख्त को पहने हुए हो। और मुश्किल वक्त में उन लोगों से बचाना चाहता हूँ जो अपने बच्चों की कब्रों पर नाचते हैं। तुम मुझे मायूस नहीं करोगे अगर तुम खुद को दूसरों से या फिर मुझसे भी दूर करो तो। तुम मुझे मायूस नहीं करोगे अगर तुम खुद को दूसरों से या मुझसे भी दूर करो तो, क्योंकि दरअसल जो मुझसे मुख्तलिफ है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत। बारे में सिर्फ इतना सोचो, क्या यही मेरा तमाम वजूद है? क्या यही मेरा तमाम वजूद है? नज़्म हमेशा नामुकम्मल होती है, तितलियां उसे पूरा करती हैं। नज़्म हमेशा नामुकम्मल होती है, तितलियां उसे पूरा करती हैं। इश्क में कोई मशवरा नहीं, ये तजुर्बे की बात है। शायरी में भी कोई मशवरा नहीं, ये सलाहियत की बात है। और अंत में एक ही बात है, सलाम सलाम सलाम। Lineup of 12, I don't know, maybe 11 or 10, because it's rainy season, it is flu season, that's the excuses that we've heard so far.
But for me right now, it is poetry season, and I am going to invite the next few poets over here on the stage. The next few poets on the stage to sizzle with their words. हमारे पहले कवि सिर्फ कवि नहीं, एक रंगमंच अभिनेता हैं, निर्देशक हैं और एक गायक हैं. Please welcome on the stage पवन मुसाफिर. है कोई सूख जाता फूल यूं ही किसी बान में कि 5 पंखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे. ये 5 पंखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे. धूल बन जाना इसी विधि के विधान में, किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में. बीज वसुधा में सुगंध आसमान. यहाँ पर विराजमान बेचारे होने लगे जब भाषा रंग रूप मजहबों में बंटवारे होने लगे. परेशान गुरु नानक ईसु अल्लाह ब्रह्मा बुद्ध हैं. परेशान गुरु नानक ईसु अल्लाह ब्रह्मा बुद्ध हैं. पूजा स्थल वीरान पड़े हैं, सड़कों पर धर्म युद्ध है. पूजा स्थल वीरान पड़े हैं, सड़कों पर धर्म युद्ध. कि सांस छोड़ने की कौन नीति होनी चाहिए. सांस खींचने से पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस छोड़ने की कौन नीति होनी चाहिए. मान या गुमान अभिमान का विधान हो या कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए. कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए. और कांच के खिलौने जैसी छुई हुई जिंदगानी, कांच के खिलौने जैसी छुई हुई जिंदगानी खूब सावधानी से व्यतीत होनी चाहिए. और भूल करना तो है मनुष्य का स्वभाव, किंतु अंत में तो भावना पुनीत होनी चाहिए. अंत में तो भावना पुनीत होनी चाहिए. अंत में तो भावना पुनीत होनी चाहिए. शीशा देख तस्वीरें नहीं असलियत बताती हैं. इजाजत चाहता हूं आपकी तालियों से वजीफा चाहूंगा कि शीशा देख तस्वीरें नहीं असलियत बताती हैं. शीशा देख तस्वीरें नहीं असलियत बताती हैं. मौत तो जिंदगी की अहमियत बताती है. और पैसे कमा या ना कमा ये लोग कमा ले मुसाफिर. पैसे कमा या ना कमा ये लोग कमा ले मुसाफिर. जनाजे की भीड़ इस मुर्दे की हैसियत बताती है. जनाजे की भीड़ मुर्दे की हैसियत. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत बहुत. Somebody who is abundantly adored but unaware of the beauty she holds. Ladies and gentlemen, please welcome Jannat Sur. बदला है मिजाज मेरा, बदला है अंदाज मेरा, बदला है मिजाज मेरा, मेरे शब्दों ने बदला है आज मेरा. अब पेश है आपके सामने सवालों और ख्यालों का एक ऐसा सफर जिसमें मैं और शायद आप भी अक्सर खुद को उलझा पाते हैं. शीर्षक है आजाद हो. मेरे ख्याल इतने उलझे हैं कि कागज पर उतरते नहीं. मेरे ख्याल इतने उलझे हैं कि कागज पर उतरते नहीं. उतरते भी हैं तो अंतर के इस शोर को ठीक से बयां करते नहीं. उतरते भी हैं तो अंदर के इस शोर को ठीक से बयां करते नहीं. थम जाऊं अगर मैं कुछ पल तो जिद्दी है ये थमते ही नहीं. थम जाऊं अगर मैं कुछ पल तो जिद्दी है ये थमते ही नहीं. संवारना चाहूं तो संवरते नहीं और समेटूंगी तो कैसे ये ठीक से बिखरते ही नहीं. इतने ख्याल इतने सवाल, क्या इनका जवाब ढूंढ नहीं, कुछ कारनामे. एक छोटी सी नज्म है हिचकी. जिस पल तेरे ख्याल का निवाला जहन में उतरता है. जिस पल तेरे ख्याल का निवाला जहन में उतरता है, मन के हलक में उसी पल की एक उम्र लंबी फांक अटक जाती है. जिस पल तेरे ख्याल का निवाला जहन में उतरता है, मन के हलक में उसी पल की एक उम्र लंबी फांक अटक जाती है. क्या तुम्हें दिन भर कभी हिचकी नहीं आती? क्या तुम्हें दिन भर कभी हिचकी नहीं आती? के आसार बनाना. कल मैं एक कहानी लिखकर भूल गया किरदार बनाना. कल मैं एक कहानी लिखकर भूल गया किरदार बनाना.
और शेर आखिर की मेरे बाद मेरी मिट्टी से, मेरे बाद मेरी मिट्टी से और अच्छा फनकार बनाना, मेरे बाद मेरी मिट्टी से और अच्छा फनकार बनाना। बहुत शुक्रिया। गजल पेश करता हूं। फिर उनसे दिल लगाकर देखते हैं, फिर उनसे दिल लगाकर देखते हैं, नए रिश्ते बनाकर देखते हैं। फिर उनसे दिल लगाकर देखते हैं, नए रिश्ते बनाकर देखते हैं। और बड़ा जरखेज है दामन तुम्हारा, बड़ा जरखेज है दामन तुम्हारा, कोई आंसू गिरा कर देखते हैं। बड़ा जरखेज है दामन, चिरागों को बुझाकर देखते हैं। नए तो कुछ नहीं लगते कि जब हम, नए तो कुछ नहीं लगते कि जब हम पुराने गम उठाकर देखते हैं। नए तो कुछ नहीं लगते कि जब हम पुराने गम उठाकर देखते हैं। और आखिरी वक्त में जो है मज़ाहिया सा शेर है कि कहाँ लिखा है तुमने नाम मेरा, कहाँ लिखा है तुमने नाम मेरा, अभी चश्मा लगाकर देखते हैं। Of literature to our students. So everyone brace yourself for a reality check and a warm hug both. Ladies and gentlemen, Akriti Sharma for you. बता तेरा क्या ठिकाना, बयां करे जो तेरा फसाना, है आखिर वो कौन सा तराना। गुजरता चला जाएगा तू बेशुमार शहरों से, गुजरता चला जाएगा तू बेशुमार शहरों से, पर कहाँ अपने वजूद के बीच तू बोएगा। अनजान चेहरों में जब तुझे तलाश अपनों की होगी, तो कौन जाने कितनी निष्पक्षता उस वक्त तेरी नजरों में होगी। भटकते मुसाफिर बता तेरा क्या ठिकाना, बयां करे जो तेरा फसाना, है आखिर वो कौन सा तराना। जो कभी गूंज उठेंगे सन्नाटे, तो अपने मन को बहलाने तू बिसरी कोई धुन। काफी है दीवाना खास हूँ तेरा, यही पहचान काफी है। दुआओं में भी हूँ शामिल, ये एक एहसान काफी है। मेरा एक नाम राहत था, तखल्लुस था वही गुम थी। मेरा एक नाम राहत था, तखल्लुस था वही गुम थी। रखो जो नाम तुम मेरा, वही उन्वान काफी है। रहा एक हम सफर सबका, अकेलापन है नाम उसका। रहा एक हम सफर सबका, अकेलापन है नाम उसका। किसी के साथ रहना हो तो ये नादान काफी है। करम कोई तो है मुझ पे, मेरी उम्मीद की ये लौ मुसलसल जलती रहती है, भले तूफान काफी है। बुजुर्गों से जो पूछा जिंदगी क्या है, तो वो बोले बड़ी मासूम शय है ये, मगर शैतान काफी है। ये कैसे दोस्त मिलते हैं, नमूने दोस्त मिलते हैं। जहां पर कुछ नहीं रखा, वहीं पे दोस्त मिलते हैं। नहीं मौजूद जन्नत में, नहीं मौजूद जन्नत में, जमीन पे दोस्त मिलते हैं। उन्हें दुश्मन मिले सारे, हमी से दोस्त मिलते हैं। कहा मक्ता चला गौतम, कहा मक्ता चला गौतम, जहां पे दोस्त मिलते हैं। रोशन दिया कबूल करे, दुआएं मन्नतें रोशन दिया कबूल करे। वो आए और मेरे अश्के वफा कबूल करे।
वो आए और मेरे इश्क़े वफा कबूल करे। वो आईने से अगर मुतमयन नहीं है तो फिर, वो आईने से अगर मुतमयन नहीं है तो फिर हमारी आंखें बतौर आईना कबूल करे। कलम की नोक से निकली हर बात है, शायरों की महफिल में बस लफ्जों की बरसात। आओ मिलकर इस मौसम का आगाज करें, कुछ सुने, कुछ कहें, कुछ मीठी सी आवाज करें। Well, this evening we have a blend of languages, themes, emotions, words, poets from diverse backgrounds and cultures. And we have really looked forward to this evening. Our poets are going to bare their souls to you, and you all look perfectly ready to receive it. You all know that poetry is an art. It thrives in interaction. So while you're sitting here, cheer, congratulate, give, receive, connect with the words, with the thoughts, and with each other. You can be loud, you can be soft, interact and connect. Well, that's the theme and that's the call for this evening. And if I may also go ahead to mention that if painting comes from blankness and music comes from silence, then poetry comes from space between thoughts. Let us all this evening settle in that space and listen